Viewers, listen to what I'm about to tell you. In the communal violence that broke out in Sambhal, Hindus were the aggrieved party. Many Hindus were beaten up while no one from the other side has marks of injury. There is evidence to prove Hindus' claims while Muslims' version is entirely hearsay and conjecture. There is temple here that was converted into a mosque, and Muslims have been top dogs here all along. Now, all this is enough for the self-proclaimed secular lobby to start frothing from the mouth. But viewers, hold your horses. These statements have been made by the so-called torchbearer of secularism, Jawaharlal Nehru, 100 years ago, 1924. And there's more, viewers. In a report prepared after communal violence in Sambhal in 1924, Nehru said that Sambhal is among the most ancient towns, has been mentioned in Purans, and holds an important place in Hindu period. He mentions how Prithviraj built a fine temple here that was subsequently converted into a principal mosque in the city. Sambhal is full of tirths and sacred wells, and they say next Vishnu avatar will be here. A century later, imagine, viewers, if Prime Minister Modi or Chief Minister Yogi were to say something even remotely close to this, they would be tagged communal and Islamophobic immediately. In fact, when Chief Minister Yogi did say something along the line in assembly, there was outrage and the ecosystem went after him. Sample this. नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। This is what the Chief Minister of Uttar Pradesh said in the assembly. See the similarity to what Nehru had written in the letter that I read out, at least the excerpts of that letter. And like I said, viewers, at the cost of repeating myself, I want you to think about what would happen if the Prime Minister or anyone from the BJP were to say something like this. They would be tagged communal immediately. No questions asked. Let's quickly open this up. Manish Shukla, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Karan Verma, political analyst. Kamruzaman Chaudhary, political analyst. Haji Rangrez, spokesperson of the AIMIM. Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party. Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena Uddhav faction. And Harshvardhan Tripathi, senior journalist, completes this panel. Gentlemen, good evening. I want to begin by asking Kamruzaman Chaudhary ji one simple question. आप लोग बोल रहे हैं, सबूत दीजिए संभल में there is an attempt to, stoke communal tension. This is 1924. 100 साल पहले नेहरू जी लिख के गए, क्या था वहां मंदिर थी, उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया। ये वो लिख रहे हैं। नहीं, Pranesh, one thing you understand of this report that you have brought out here of Jawaharlal Nehru ji writing to Mahatma Gandhi ji. But Pranesh, can you please correct the echo a little bit is coming out here? Let me just give me some time also. In the same letter written to Mahatma Gandhi ji, he says, and let me repeat out here. I received your letter yesterday. I have also received your telegram and I am replying to it separately. It would have been better had Muazzam Ali or Hayat come to Sambhal with me, but I just forgot about them. I had taken Badruz Zaman with me. He is related to Khaliquz Zaman. He was quite helpful. Lucknow is in a bad state and every day the tension is increasing. Some talks to secure an agreement are proceeding, and I hear that the Mohammedans are preparing to apologize to the Hindus. But this alone will probably not satisfy the Hindus. Some people have asked me to go and arrange a compromise, but I have no desire to do so and I have refused to go point blank. Whom would I represent? The Hindus are not going to accept me, and why should the Muslims do so? Basic point that I want to put out here across to your viewers is
there are historical conflicts between the two communities. There is no denying the fact. Even during Jawaharlal Nehru's time, when Gandhi sent him to Sambhal, it was an attempt of reconciliation between the Hindus and Muslims. The Muslims were ready to apologize to the Hindus for the communal riots that happened out there. Unlike today, where the communal clashes are happening on a daily basis across Uttar Pradesh and North India particularly. That's precisely the question. But you see, your idea of what is any secular and communal is now exposed. Do you believe this letter written by this report by Nehru is communal? No. It's a simple question. Is this a communal report? Was Nehru secular, communal? No, you... The man is saying there was a temple. He can choose and that declare was, no, this 1 was minute. written. That was I turned read the into a context mosque. of the letter. That Nehru ji is saying in this letter, Kamru Zaman Yes. Chaudhary ji, why are you not understanding? Now, you can either distance yourself from Nehru or say that, look, you know, there is more context to it. There is only one context. No. 1 minute. You And are by the way, quoting out this of was no context. reconciliation, sir. He was asked by Mahatma Gandhi to go there and find out what's going on. This was not some reconciliation going on. And what he found out was in a report, but the report was buried, viewers. It was buried. It was only for the eyes of the select few. Now that this has come out, you will have to answer. Was Pandit Pranesh, may Nehru, I ask you a Jawaharlal question Nehru now? secular or communal? It's a May I simple ask you a question now? Pranesh, can I ask you a simple question? In the Jawaharlal Nehruji's report, nowhere he mentioned that the Sambhal Jama Masjid was created on the ramparts of a temple out there. It is not mentioned. What he mentioned was a two-third majority Muslim town of Sambhal. There are Hindus, there are clash points that have been happening. This is a town which was predominantly has got Hindu culture out there. No, that had got, I have read the report, Pranesh. I have my own comprehension. It's the way that you take it. There is only one way of taking this, sir. There is only one way. I don't know the other way. This other way is called monkey balancing. That's the other way. And it's called monkey balancing. You secularism के नाम पे कुछ भी बोल दो. I'm listen to me. People who know Sambhal, who have some idea of what, you know, what happens in Uttar Pradesh, you know, the area, the land, history, geography, will tell you. Let me bring in, you know, and I'm not going to politicize it up front. We will get the BJP spokesperson Shukla ji in a bit. हर्षवर्धन त्रिपाठी, कमरू जमान कह रहे हैं कि ये संभल में जामा मस्जिद की बात नहीं हो रही. इस चिट्ठी में नेहरू जी ने लिखा है कि प्रिंसिपल मॉस्क बना दिया उसको. अब संभल में प्रिंसिपल मॉस्क कौन सा है? प्रणय जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हमें हिंदू मुस्लिम की डिबेट करनी पड़ी. इससे शर्मनाक हमारे लिए कुछ नहीं है. और उसकी वजह क्या है? एक तो मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि देयर इज नो सच थिंग लाइक सेक्युलरिज्म. ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म है जिसको हम प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं. पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है. और इस फ्रॉड सेक्युलरिज्म की आड़ में पहला काम क्या होता है? हिंदू पक्ष को चुप कर देना. यानी तुम चुप रहो, तुम्हें बोलना नहीं. यह है सेक्युलरिज्म. इसके अलावा और कोई बात आप बताइए सेक्युलरिज्म से और कुछ हासिल होता? जिस मस्जिद की बात हो रही है उस मस्जिद के बाहर एक कुआं दिख रहा है. कहा गया इस पर मत करो. अब कहा जा रहा है कि उसमें कुआं ये पूरा नहीं है भैया, अंदर भी कुआं है, इसलिए यहां कुआं पूजन नहीं होगा. जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू लोग हैं, जो वहां अब भी बचे हुए हैं, वो क्या बता रहे हैं? उनके दादाजी, उनकी दादी, उनके नाना नानी वो कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे आए. वो छुट्टियों में आते थे तो क्या होता था? नई बहू घर आती थी तो किस कुएं पर कुआं पूजन के लिए जाती थी. मुंडन किसी बच्चे का होता था तो कहां कुआं पूजन किस कुएं पर जाते थे. यानी जो हिंदू रिचुअल्स हैं, हिंदू प्रैक्टिसेज हैं, वहां वो फॉलो की जाती थी. अब सवाल यहां यह है कि नेहरू जी ने क्या कहा. मैं बार बार कहता हूं क्यों नेहरू जी को बार बार घसीट के लाना, क्योंकि नेहरू जी जानते नहीं थे, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया कि जो हिंदू पहचान है, हिंदू आइडेंटिटी है, हम उसको उस प्रमुखता के साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि सामने से कहें कि हां भाई ये है, वो नहीं कहा गया. अब कमरुज्जमा जी जो कह रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई हिस्टोरिकली हिंदू मुस्लिम क्लैशेज होती हैं. क्या कमाल की बात कह गए. अरे कमरू भाई, मुगल आक्रमण करता आए, कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश करने हिंदू थोड़ी न गए थे. तो पहले तो फैक्ट्स जो है वो क्लियर रखिए तो बात ठीक से होगी. मेरा यह मानना है
जब भी ये बात हो रही है हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, कम्युनल हार्मनी बनी रही, इसके लिए क्या जरूरी है? सच सामने आए और उस सच को बिना किसी पॉलिटिसाइजेशन के सब स्वीकार करें। एक लाइन की बात। विवेक साइलस, जब योगी आदित्यनाथ असेंबली में कहते हैं कि पुराणों में इसका वर्णन है, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो पोलराइज कर रहे हैं, कम्युनल चीफ मिनिस्टर है, ये इस्लामोफोबिक है। ये तो नेहरू जी लिख के गए 1924 में। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कल भी एक वर्णन किया था और आपके चैनल पे ही मैंने डिबेट की थी प्राइम टाइम में। उन्होंने कहा था 1978 के राइट्स की बात की थी उन्होंने, कि संभल में क्या हुआ था। कल ये एजेंडा था, लेकिन वो भूल गए कि 1978 में जो थी वो जनता पार्टी की सरकार थी और जनसंघ उसको सपोर्ट कर रहा था, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी थी। और 1978 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जो थे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनको भी सपोर्ट कर रहा था जनसंघ, जो कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी जो कि जनसंघ था उस पर उंगली उठा दी है। नहीं तो वो जांच कर रहे हैं, तो अगर आप इतने ही कन्विंस्ड है, ये कल से ही चल रहा है। कल भी आपके एक पार्टी के सहयोगी थे, वो भी यही बार बार बोले जा रहे हैं, आप लोग भी वही, वो हर प्रवक्ता वो एक ही लाइन बोल रहा है। अरे अगर कर दिया तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि उस समय का भी वो चाहते हैं। अब सोचिए, यही एग्जांपल है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता ने कह दिया कि हम 84 की जांच करवाएंगे, कांग्रेस वाला बोल रहा है हम करवाएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए। आप बोलिए, अब आप 1978 उससे पीछे चलिए, 24 पहले आता है कि 78? 24 में चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने प्रणेश जी। देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, उन्होंने आईने अकबरी का जिक्र किया, उसको मेंशन किया आईने अकबरी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने आईने अकबरी का पेज नंबर 281 नहीं पढ़ा, जो कि सैकड़ों वर्ष पहले लिखा गया था, जिसमें बिल्कुल साफ मेंशन्ड है कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बढ़ा। आई थिंक एट द मोमेंट व्हाट इंडिया इज फेसिंग इज एब्सोल्युटली नेहरू जी झूठ बोल रहे थे। टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। आईने अकबरी पे ज्यादा भरोसा है कि नेहरू जी? आप बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। नहीं तो क्या नेहरू जी ने इस रिपोर्ट में लिखा है, जो कि रिपोर्ट आपने मुझे दी है, क्या इस रिपोर्ट में नेहरू जी ने लिखा, कहीं भी लिखा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना है? कहीं नहीं लिखा है। कहां लिखा है बताइए? अभी तो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, पढ़ के सुना दिया मैंने आपको, मैं फिर से पढ़ देता हूं। Sambhal is a town in district of Moradabad, about 23 miles from Moradabad. It is very ancient town, perhaps one of the most ancient towns in India. Mention is made of it in Puranas. It was an important place in Hindu period. Prithviraj built a fine temple which was subsequently converted into principal mosque of the city. अब आप बताइए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ उनका है। अब बोलिए। नहीं, what do you mean by principal mosque? What do you mean by that? हर्षवर्धन जी, प्रिंसिपल मॉस्क क्या होता है बताइए विवेक साइलस को। प्लीज डू इफ यू कैन। प्रणेश भाई, देखिए मुश्किल यही है, अब विवेक जी ने कह तो दिया, इनकी बात सुनकर इनकी पार्टी के जो वर्तमान सांसद जिया उर रहमान बर्क हैं वो बड़े नाराज होंगे, क्योंकि जिया उर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क जो यहां लंबे समय तक सांसद रहे, वो 74 से 80 तक वहां के विधायक थे संभल के। इसलिए समाजवादी पार्टी को मुश्किल है क्या? वरना किसी को क्या मुश्किल हो सकती है? 74 to 80 वो संभल के विधायक थे। इसको चेक करिए, फैक्ट चेक करिए। जनता पार्टी की सरकार इनको याद है, लेकिन विधायक नहीं याद है। वही दिक्कत है। आपको विधायक याद है? नहीं, एक मिनट, करण वर्मा प्रिंसिपल मॉस्क नहीं समझ पा रहे विवेक साइलस। देखिए प्रणेश, दिक्कत सबसे बड़ी यह है दैट हिंदूज हैव टू प्रूव टाइम एंड अगेन एंड दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन डिनायल दैट हिंदूज हैव सफर्ड. Hindus are aggrieved. I mean, Pandit Nehru has summed it up so well. Hindus are the aggrieved party. और ये हमेशा से रहा है. 100 साल में, as much as the things have changed, they've remained the same. Today also, Hindus have to beg, they have to go to the court, they get a survey, they're still, told that no, we are in denial of whatever has happened. And every single episode, whether it's Kashmiri Pandits in Kashmir, whether it's in Godhra, where people were burnt alive inside the train, they'll always be in denial. And even when a film comes out on that, they'll say that's propaganda. So they are in denial of
Hindu genocide, Hindus being slaughtered time and again, और हर बार की बात है. एंड प्रणेश, ये लोग कुछ दिन पहले ही कह रहे थे नेहरू जी के लेटर्स नहीं आने चाहिए सामने, when Sonia Gandhi had ordered back the letters. Now we know why these letters have such historical importance, why we get to know so much about the skeletons in the closet through these letters. 100 साल पहले भी हिंदूज वर द अग्रीड पार्टी. इनफैक्ट प्रणेश, उससे पहले भी अगर हम चले जाए, राइट फ्रॉम द मोपला मैसेकर इन 1921, टाइम एंड अगेन हिंदूज हैव बीन बीटन, स्लॉटर्ड, अग्रीव्ड. But the fact is, the moment we raise this, they start giving us labels like Islamophobia because they want to preserve this false notion of secularism. Vote bank politics tak और minority appeasement tak, where have you brought the fabric of this civilization to? Can't you face the truth and accept nothing it? has changed That from yes, 19 no, no, there was from a temple, there is a 1924 temple Karan. there, and nothing that has changed. There's another para here. इसमें ये लिखा हुआ है, there was a mela. The mela comprised of procession of poles and flags representing some saint or peer. It is something like Ghazi Mia's Mela in other towns. Last year it fell during Muharram. अब आप देखिए हाजी साहब क्या हुआ है. मुहर्रम के समय वो मेला एक साल ऐसा हुआ कि कोइंसाइड कर गया. हुआ ये, वहां जो एसडी और तहसीलदार थे, नेहरू जी लिख रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, वो दोनों मुस्लिम थे, वो कहते हैं. और हिंदुओं को कहा गया कि इस साल आप नहीं मनाएंगे ये मेला, ये प्रोसेशन नहीं निकलेगी. 24 में भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा है. ये नेहरू जी लिख रहे हैं. देखिए पन्ने जी, जिस तरीके से भाजपा लगातार गड़े मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें जो है इतिहास में 100 साल पीछे ले जाने की बातें हो रही हैं और उनकी चिट्ठियों पर बात हो रही है, तो मेरा यही कहना है कि लोग इतने महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए. हम मंदिर मस्जिद पे आज भी वही बात कर रहे हैं जिसका इतिहास उस मस्जिद का 500 साल का है. हम 100 साल पहले की बात चिट्ठी पे जो है चर्चा कर रहे हैं. तो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा लगातार करती आ रही है, वो दिखाना चाहती है. योगी जी की एक भाषा भी ऐसी नहीं लगती कि एक मुख्यमंत्री बोल रहा हो. ऐसा लगता है जैसे रोड पे चलने वाले लोग बोलते हो. वो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और बातें वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं. हम वक्फ की जमीन छीन लेंगे, हम ये कर देंगे, हम पता नहीं क्या क्या बात, मतलब जो छीन लिए क्या नहीं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं. बात बताइए, आप ये बताइए, आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि 15 मिनट पुलिस हटा लो या 15 मिनट, वो नहीं योगी जी ने कहा था ना, ये 15 मिनट किसने कहा था? देखिए मैं बता रहा हूँ, हाजी साहब सुन तो लीजिए. पंडित भाई, मैं बहुत मोहब्बत से आपको बता रहा हूँ. आज बहुत अच्छे नाम तो लीजिए. मोहब्बत से आपने बोल दिया कि सड़क चलते नहीं. अब मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए. बैरिस्टर साहब के बारे में तो एक शब्द तो बोलिए, कौन कह रहा था 15 मिनट? सुन लीजिए, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, मगर वो जो है उस केस में जो है बरी भी हुए. अरे मैं दूसरे ओवैसी साहब जो है, बड़े ओवैसी साहब, वो भी महाराष्ट्र में बोल. मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी डिबेट के 15 मिनट हो गए, अब मैं कह रहा हूँ 15 मिनट हो गए और 15 मिनट ही हो रहे हैं कि आपकी डिबेट को शुरू हुए 15 मिनट हो गए, तो इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत नहीं, कोई गलत बात नहीं है इसमें. तो वो अगर मगर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और भाजपा लगातार हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति कर रही है यूपी में और पूरे प्रदेशों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. मैं कह रहा हूं पंडित जी, अगर मुसलमान ना हो तो भाजपा एक सीट नहीं जीत सकती पूरे हिंदुस्तान में. क्यों? वो लगातार मुसलमानों को दिखाती है कि विलन का रूप बनाती है. तो आप मान रहे हो बीटी? मुगल मर गए, चले गए, आप मान रहे हो बीटी में किसने रखा? भाजपा लगातार मुगलों की बात करती है, तो नहीं करनी चाहिए, जो है करनी चाहिए कि नहीं? मुगल क्या करके गए उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बोल रहे थे महंगाई है, बेरोजगारी है. ओवैसी साहब बोलते नहीं है मस्जिद खतरे में, बचा लो. क्यों नहीं महंगाई पे बात करते हैं? क्यों बोलते हैं मस्जिद खतरे में? नहीं, आप शायद कौन सी मस्जिद खतरे में? देखते नहीं है. कौन सी आप शायद देखते नहीं है. अब एक बात बताइए, कौन सी मस्जिद खतरे? अरे अयोध्या में संभल की मस्जिद खतरे में, बिल्कुल खतरे में. इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, नेहरू जी ने लिखा था. व्यूअर्स, आई एम रिपीटिंग, जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चे हमारे मारे अयोध्या 2, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं, अयोध्या 2 उनको मारा, उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, तो शासन प्रशासन ओके, लेट्स गेट इन द बीजेपी. ये सारा काम कर रही है. चलिए, हो गया. आप 15 मिनट तक नहीं बोलना है हाजी साहब, 15 मिनट नहीं बोलना है, बाकी लोगों को बोलने दीजिए. होती रहेगी. चलिए, मनीष शुक्ला, आप इसको संभल टू अयोध्या 2 बना रहे हैं. देखिए, श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद के विवाद में अभी हाजी ने कहा कि 500 साल पुरानी मस्जिद का इतिहास है, मुगल तक स्वयं चले गए थे. और जो हरिहर मंदिर का जो इतिहास है पुराण और वेदों में लिखा है, जिसकी गणना कितने हजार वर्ष पुरानी है. मैं केवल मैं इनको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मैं इसमें जाने वाला नहीं हूं. देखिए, जो संभल का विवाद है 1924 में, जो जिस लेटर पे आज डिबेट कर रहे हैं, संजोग से 1924 में
आरएसएस का गठन नहीं हो पाया था। तो कम से कम अब ये लोग जितने लोग आपके पैनल पे बैठे तथा कथित फ्रॉड सेकुलर के झंडा वाहक, उनको तो ये नहीं आरोप लगा सकते कि उस समय आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ ने ये करवा दिया था, झगड़ा करवा दिया था। 1924 में नेहरू जी ने 9, 10, 11 सितंबर को जो देखा उसको गांधी जी को लिख कर दे दिया कि हिंदुओं के हालात ये हैं, वहां कब्जा किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि जनश्रुतियों में वहां आपस में बातचीत में है कि ये मंदिर था, मंदिर में तमाम रिचुअल हिंदू किया करते थे। यही बात विधानसभा में योगी जी जब करते हैं तो सांप्रदायिक घोषित हो जाते हैं। लेकिन देखिए, इससे हमको कोई संकट भी नहीं है, हम न्याय के लिए सांप्रदायिक होना पसंद करेंगे। 1978 में 184 हिंदू मार दिए गए। इससे बड़ी विडंबना है कि एक भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया गया। एक भी व्यक्ति, एक भी आरोपित नहीं, वो कह रहे विवेक साइलस ये कह रहे समाजवादी पार्टी का आरोप यही है कि उस समय और अब तक केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। आप अभी तक क्या सो रहे थे? क्या कुंभकर्ण की नींद आ गई थी आपको? एक मिनट विवेक जी, एक मिनट आपने एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट देखिए, एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। हाजी साहब ने कहा कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। कुंभकर्ण कौन थे बताइए? देखिए, मैंने अब बताओ, अब ऐसा मत करो हाजी भाई, थे और आप बताने दीजिए एआईएमआईएम को। पीडीए में वो कहाँ है? सुन तो लीजिए, बताइए। इस तरीके से नहीं, कुंभकर्ण कौन थे बताइए, उनका मेंशन बताया तो आप बताओ। रावण जी के भाई थे और रावण जी के भाई थे। सुनिए हर्षवर्धन जी, ये लोग जो सामाजिक ध्रुवीकरण कर मैं तो बस ये बोल रहा हूँ हाजी साहब, सुन लीजिए 2014 से अरे सुन लो यार, ऐसा मत सुन लो। मुद्दों की बात राजनीति करती थी, 2014 के बाद से पूरी राजनीति पलट गई। सवाल तो अब जो भाजपा है वो जो हिंदू मुसलमान करती है, वो अब 80-20 करती है। ये आप चुनाव का कैंपेन शुरू कर दिया आपने। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता रहा हूँ भाई। अरे आप कुंभकर्ण में मानते हो, रामायण में नहीं मानोगे? रामायण में जो लिखा हुआ आप अयोध्या 2 अयोध्या 1 बोल रहे हो, कुंभकर्ण बोल रहे हो। बना हुआ है, अरे सारी चीजें सब चीज है। हर्षवर्धन जी, मंदिर भी है, लाखों मंदिर हमारे यहाँ पर है, लाखों मस्जिदें हमारी, हम इन पर हर्षवर्धन जी सब चीजों पर देखिए, रामायण पे नहीं मानेंगे, लेकिन रावण जी के भाई ये वो कह रहे हैं, रावण जी के भाई कुंभकर्ण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई भी एग्जाम्पल दें, ये इनको मानना पड़ेगा ना कि वो एक हिंदू सभ्यता का शहर है, ये मानना पड़ेगा ना। आप उदाहरण कोई भी दे रहे हो, मूल तो यहीं से शुरू कीजिए ना। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी की सरकार रही हो, किसी की सरकार के वक्त दंगा हुआ हो, किसी की सरकार के वक्त लोगों की जान गई हो, ये अपने से क्यों सोच ले रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या इनके मन में कोई चोर है क्या? 2002 की दंगे की जांच होगी, हो तो गई है, अब कितनी जांच करवाओगे? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन मिल गया, क्या हुआ था, क्या रिपोर्ट आई? सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं हम लोग। एआईएमआईएम क्या रिपोर्ट आई? आपकी जो पार्टी है एआईएमआईएम सुप्रीम कोर्ट में मानती है। इस तरीके की बातें हाजी रंगरेज, आप तो अयोध्या वर्डिक्ट भी नहीं मानते। जिस दिन फैसला आया ओवैसी जी ने कह दिया कि ये तो ब्लैक डे है जुडिशरी के लिए, तो आप लोग जांच की कैसे बात कर रहे हो? आप लोग तो बोलते हम सड़क पे आ जाएंगे। ये तो आपका जो पूरा केस है परनेश जी, आपने अयोध्या का पूरा केस आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको 3 फैक्ट बता देता हूं। 1949 में चोरी से वहां पर मूर्ति रखी गई, नीचे बात की गई कि नीचे मंदिर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो भी गलत बात। तीसरी बात, मस्जिद को जो 1992 में जो है कार सेवकों ने मस्जिद को तोड़ा, ये भी गलत बात। किशोर तिवारी, तीनों चीजें बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट में और उन लोगों को आज तक सजा नहीं मिली। इस पर बात कर लीजिए, किशोर तिवारी सजा दिला दीजिए। इन लोगों का बड़ा हाथ था अयोध्या मूवमेंट में। किशोर तिवारी जी, आपके तो नेता क्या क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है हाथ से पैर से, बताइए जरा हाजी रंगरेज जी को। एक मिनट, विवादित ढांचा तो हमने गिराया था, मैं कबूल करता हूं और उसके लिए मुझे स्वाभिमान है। लेकिन मैं हर्षवर्धन और शुक्ला जी को एक बात बोलता हूं कि 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने पूरा हिंदू धर्म के लोगों को बौद्ध धर्म में बना लिया था। इतना क्या, सभी तरफ उन्होंने बौद्ध धर्म फैल गया था। और अशोक ने तो जितने भी शिलालेख, जितने बड़े बड़े बौद्ध विहार बनाए थे, उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। और राहुल वात्स्यायन कहते हैं कि सब बड़े बड़े विहारों में को फिर
किशोर जी, एक स्वेच्छा- सीधा सवाल है, एक ये मिनट। जो 1924 का ये चिट्ठी है जिसमें नेहरू जी अरे कहते हैं मुझे बोलने दो ना, कि थोड़ा मंदिर तो तो बोलने मंदिर तो तोड़ के प्रिंसिपल मॉस्क बना दिया, एक ये मिनट इसका आप प्रणेश। क्या सोचते हैं, ये क्या है? मैं प्रणेश थोड़ा मैं पूरा कर लेता कि उसके बाद शंकराचार्य ने पूरे पीठ बनाए, पूरे मंदिरों का हुआ, पुराणों के रेफरेंसेस लेके फिर से मंदिर बनाए गए। लेकिन जब मुगलों का राज्य आया और उसके बाद मंदिरों को ध्वस्त कर कर मस्जिद बनाने का एक दौर चालू हुआ। और मुझे लगता है कि भारत के अंदर इस्लाम ये 1500 साल पुराना है और भारत के अंदर इस्लाम केवल 1200 साल पहले आया, लेकिन बहुतांश मस्जिदें या मंदिरों पे बनी है, जिस मंदिरों को बौद्ध विहार बोलकर पहले कहा जाता था। तो नेहरू जी का जो पत्र है उसे संदर्भ अगर देखा जाए तो चुस्त दुरुस्त बात की है कि पुराण में जो मंदिर था उस नहीं नहीं, पर चुस्त दुरुस्त मस्जिद- किशोर जी, मेरा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री ये बोल दें, जो आधी बातें जो नेहरू जी ने लिखी है वो अगर प्रधानमंत्री मोदी बोल दें या योगी आदित्यनाथ बोल दें, तो लोग बोलेंगे इस्लामोफोबिया, ये एंटी मुस्लिम है, ये देखिए ये कम्युनल एजेंडा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। दिस इज द नैरेटिव दैट गेट्स पुश्ड व्यूअर्स. There is only one way of saying it. Half of these things, had it been uttered by the Prime Minister, एक बात मैं पूरी करता all these people would have been at Jantar Mantar protesting. Karan. You know, Pranesh, you look at history, you look at everything related to Sambal. इनके पास एक ही आर्गुमेंट है कि पहले क्यों नहीं आए, बाद में क्यों आए, इतने दिनों बाद क्यों आए। 1878 में, ये जो हाजी जी बोल रहे हैं, 1878 में पहली पिटीशन इसके लिए फाइल हुई थी चेदार सिंह द्वारा। उनके परिवार को टारगेट किया गया। लॉट ऑफ पीपल वर स्लॉटर्ड एट दैट टाइम। कश्मीरी पंडित्स के साथ 1990 में होता है तो भी ये कहते हैं टू मच टाइम हैज लैप्स्ड। और इनके जो इम्तियाज जलील थे, ये जो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, योगी जी ने कहा, इम्तियाज जलील ने क्या लैंग्वेज यूज करी थी फॉर नुपुर? डू यू रिमेंबर दैट व्हेन ही वाज एमपी? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड? तो ये यहां पर बैठ के ज्ञान ना दीजिए। द मोमेंट somebody asks for truth and reconciliation from the Hindus point of view, there is an outcry. They say secularism खतरे में है, they say Islamophobia. ये अब चलेगा नहीं। There is too much of glaring evidence in terms of letters, and this is coming from Nehru. This is coming from their historians. अभी ये बात कर रहे थे एने अकबरी की, बाबरनामा में क्लियर लिखा हुआ है संभल के बारे में, पढ़िए तो आप जरा, वो खुद बता रहे हैं मैंने कैसे तोड़ा। वो दुपी को पढ़िए जिसमें महमूद गजनी के सारे वाक्य हैं, कैसे तोड़ा गया। एंड किशोर जी, एक सेकंड, किशोर जी ने जो बात कही, एक सेकंड फोन कर लीजिए योगी जी को। योगी जी को फोन करके पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ तो मेंशन किया तो उसमें क्या आईने गलत किया? अकबरी का जिक्र एने अकबरी में भी मेंशन है, बाबरनामा में भी मेंशन है। आपकी तो पहुंच है करण वर्मा जी, आप हाँ तो किया, सही किया। वो एने अकबरी में भी मेंशन है, बाबरनामा में भी मेंशन है। 281 नंबर पेज पढ़ के आइए करण वर्मा उसमें। आपको प्रॉब्लम क्या है उसमें? 281 नंबर पेज कह रहा हूँ। जवाब दे। 281 में क्या लिखा है, कोट करिए। नंबर 281, जस्ट काइंडली गो एंड रीड इट। पढ़ के बता दीजिए। 281 कोट करिए, क्या लिखा है 281 में? नो टेम्पल दैट वाज डिमोलिश्ड टू बिल्ड एनी मॉस्क। तो नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं। नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं। टॉक अबाउट 100 years back. Today we are in 2024 and we are, it is absolutely, you know, absurd and pathetic what we are doing. विवेक जी, नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं, एने अकबरी सही है, ये जवाहरलाल नेहरू झूठ बोल रहे हैं। नेहरू जी ने ये कहा है कि वहां पर जामा मस्जिद बना था। बताइए ना, दूसरी बार बोलते क्यों नहीं है भाई? संभल का प्रिंसिपल मॉस्क कौन सा, बता दो ना। मस्जिद का उसमें कौन सा कहीं है तो बताइए। हर्षवर्धन जी आप बता दीजिए, आप तो उस एरिया को जानते हैं। ये मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं, शो खत्म हो जाएगा, एक ही चीज मुझसे पढ़वा रहे जामा मस्जिद मेंशन वहां प्रिंसिपल मॉस्क संभल का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, मुख्य मस्जिद कौन सा है? प्रिंसिपल मॉस्क का जो हिंदी अनुवाद होगा क्या होगा? मुख्य मस्जिद। देखिए प्रणेश जी, ये जो भी डिबेट हो रही है, ये डिबेट हो क्यों रही है? क्योंकि एएसआई को वहां से भगाया गया। आप इसको समझिए, वो वहां अधिकार जिस तरह से, और मैं फिर कह रहा हूं, संभल की मस्जिद जीता जागता उदाहरण है कि जहां डेमोग्राफी चेंज हुआ वहां हिंदुओं के पूजा के अधिकार समाप्त हुए।
और जहां जहां हिंदुओं के मंदिर थे वहीं क्यों मस्जिद बनी है, ये सवाल तो लगातार सामने आता ही है ना। अरब कंट्रियों में मंदिर बन संभल भी उसी का उदाहरण है। रोकी जा रही है, हिंदुस्तान में बोलने दो, कैसी बोलने दो। बातें कर रहे हैं तो आप हर्षवर्धन जी, लोग- बताइए आप इस्लामोफोबिया किस कदर, बताइए कितने आप अच्छे बोल रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है खतरे में, सीनियर जर्नलिस्ट को बोलने तो दीजिए, इस्लामोफोबिया उनके दिलो दिमाग में बोलने बैठा है, दीजिए, बताइए। बोलने अरे दीजिए। अरब कंट्री कहां में, से आ गया? सऊदी में, दीजिए। सारी जगह 1 करोड़ हिंदू भाई वहां पर काम करते हैं, क्या किसी से कलमा पढ़वाया गया? एक सबूत हो तो बताइए, बताइए। वहां पर मंदिर नहीं है क्या? सारे गल्फ कंट्री में जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वहां कोई विवाद नहीं है। तो यहाँ वहां कौन हिंदू सा खतरे विवाद में है? नहीं है। तो यहाँ मगर क्यों जहां विवाद 100 कर रहे हो? करोड़ हिंदू है यहाँ खतरे में, हाजी क्योंकि रंगरेज, यहाँ पर why are you- राजनीति no, no, होनी है। how is this a हिंदुओं के dispute नाम here? पर, मुसलमानों के नाम बट पर यहाँ राजनीति पे होनी है। डिस्प्यूट क्यों है? अगर कोर्ट कह रहा है सर्वे के लिए तो क्या डिस्प्यूट है? सर्वे मना कर दिया कोर्ट ने, अरे मना और कर दिया। जो पूजा की बात हो रही थी, अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुआं पे पूजा होनी चाहिए, पूजा पे भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट मानते तो हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला में मान रहे हैं भाई। मान रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का। तो आप बताइए बैरिस्टर साहब ने ये क्या जिस कहा था तरीके से अयोध्या बातें वर्डिक्ट कर रहे हैं में? अब लगातार आप बताइए, मस्जिदों के बताइए नीचे आप जो है- बैरिस्टर अरे साहब ने भारत सुप्रीम कोर्ट खोदो के बारे में योजना क्या ले आई है कहा था? ना। हाजी अरे रंगरेज, भारत खोदो योजना ले आई है, आप सारे एक बात बीजेपी के बताइए, लोग आप मिलकर। बताइए। और पूरे देश को नहीं, खोद दीजिए भारत भाई। खोजो योजना अगर नहीं है, इससे ये फायदा मंदिर होता खोजो। हो, नहीं, देश का, नहीं, देश उन्नति करता अब हो, आप देश बताइए तरक्की एक करता हो, देखिए- देश के युवाओं को रोजगार मिलता अब हो, आप- बेरोजगारों को रोजगार मिलता हो, महंगाई कम होती है, तो पूरा भारत खोद दो। हम तो साथ है, ये खोदिए भारत, कमाल का खोदिए। इस्लामोफोबिया बोलने नहीं दे रहे मुझे। आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं। ओवैसी जी ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जब आया अयोध्या में? पढ़ के अरे सुनाओ। आस्था की बुनियाद पे अरे आस्था की बुनियाद क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में आप मानते हैं तो बोलिए अयोध्या फैसला सही था। हम गलत अयोध्या फैसला सही था बोलिए। आप बोलिए फिर अब आप बोलिए, आप एक्सपोज हो गए हाजी रंगरेज। आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था अयोध्या में। आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं? इस पर हमारे बैरिस्टर साहब ने बैरिस्टर साहब ने नहीं। अब आप फोन लगाइए बैरिस्टर साहब बात को मानते हैं, आपकी तो बहुत पहुंच है, फोन लगाइए। हम उनकी बात को बैरिस्टर साहब को फोन लगाइए, लगाइए फोन, आपकी तो पहुंच है। अरे सर, अभी आप बोल रहे थे पहुंचे सर, मेरी तो वहां तक है। मेरे से तो मैं बैरिस्टर फोन साहब से बात नहीं आपकी तो करते। मोदी जी तक बात है सर। 8-9 आपकी तो साल मोदी जी से तक बात है, 8-9 साल से बैरिस्टर साहब बात नहीं करते, किसी और से करते, कैसे पता क्यों नहीं करते? आप उनको बात पूछिए। कर लिए, करिए फोन। नहीं, फोन लगा दो ना, मैं अरे बात सर, कर फोन लेता हूं, करिए, मैं पूछ बात लेता हूं। कर आप लीजिए। सुप्रीम कोई कोर्ट मना में थोड़ी मानते करते हैं, वो कोई हैं? डरते अगर थोड़ी है सुप्रीम किसी से। कोर्ट में बात मानते करिए, हैं, जाइए उनके घर अगर पर। सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं तो कहिए सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या का फैसला सही था, बस इतना बोल दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही था, इतना बोल दीजिए आप। देखिए जो हमारे बैरिस्टर साहब अरे ने कहा, बोल हम उस दीजिए बात ना, को- अभी तो बोल रहे थे नहीं, सुप्रीम मैं कोर्ट। आपके कहने से थोड़ी बोलूंगा तो सर। आप देखिए, तो तो मेरे ये मुंह आप पे जबान एक्सपोज डाल हो देंगे। गए। ये कह दीजिए, ये कह दीजिए, ये कर लीजिए, अरे तो ये मैं हो आपसे- जाएगा, ये मैं हो। आपसे- अरे मैं सर, आपसे- आप तो ऐसा एजेंडा सेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप ही बैठे हो और आपने जो फैसला कर दिया, बस समझ लो वो सब में स्वीकार हो जाएगा पूरे देश में। आप expose अरे हो भाई गए। साहब, मेरी बात सुनिए, expose हो समझिए। गए। हाजी साहब कोई छोड़ो, expose- जाने अरे सर, दो। एक्सपोज कोई कौन बात हो रहा है? आज क्या हालात है मीडिया की सर, सब जानते हैं। मैं क्या कहना नहीं हालत है चाहता, बताइए। बस ठीक है। बताइए, आप- बताइए, आप हालत इतना बताइए। एक्सपोज हो रहे हैं, आप मत बताइए कहिए। ना क्या इसलिए हालत मैं कहता हूं, क्या अगर आप हालत किसी है? की तरफ एक उंगली करते हैं तो किसका- 3 आपकी तरफ भी अरे होती है। कोई सर, बात ध्यान नहीं, आप रखिए। क्या हालत है? आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते, आप तो लेक्चर मत दो मीडिया पे, डेमोक्रेसी पे। आप लोग तो मानते ही नहीं है जुडिशरी में, आप शरिया में बिलीव करते हैं। नहीं तो आप बोल देते कि फैसला सही था। अब आप बोलिए फैसला सही है, अरे सर, नहीं आप बोल मनुष्य पाएंगे। समिति को मानते हैं, मैं कह आप रहा हूं। नहीं, आप मनुष्य समिति को मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते। आप नहीं मैं बोल कह रहा हूं ये पाओगे। बात, तो मैं ये- बोल रहा हूं, ये मैं कोई बात हो संविधान सकती में है मानता हूं। क्या? आप बोलो, मैं संविधान अरे में नहीं, मानता हूं। मैं आपकी बात आप कर- बोलिए, अरे करण सर, वर्मा, आप व्हाई इज जितना देयर भी सो मच फंसाना चाहें, हेजिटेशन? आप पे ट्राई- Why can't Haji Rangresh say Supreme Court verdict on Ayodhya was right? And viewers, in all of this, Kamruzaman Chaudhary ji is, very happy that we are discussing something else so that he doesn't have to answer about the letters I am holding written by Nehru. Karan, quick answer. So, Asaduddin Owaisi has been very clear, Pranesh. हाजी जी बोल ही नहीं सकते ये बात, क्योंकि ओवैसी ने ये बात बोली हुई है, ता कयामत तक वहां पर मस्जिद रहेगी, ये शब्द बोले हुए हैं। डिस्पाइट अ क्लियर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आ गई, मंदिर बन गया भव्य, ठीक है, तब कोई भी बात उनका नहीं, ये कोई कहना वहां मस्जिद है। दिस मैन इज इन डिनाइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां बोल रहे हैं जय संविधान। ये तो हालत है इनकी। दे आर एक्सपोज्ड एवरी मिनट, हर स्टेटमेंट पे एक्सपोज होते हैं। अब तो नेहरू ने एक्सपोज कर दिया इनको। Okay, we'll have to move on. Let's leave this for some other day. I thank all of you for joining us on debate number 1.